Jai Hind, dear students. Welcome to the English class. At first, watch these sentences. A dog is a good pet. An ostrich would beat a chicken in a race. We went to the best restaurant in town. These blackberries are sour. There are many flowers in the garden. He took all the books. The dog growled and showed its teeth. There are some letters for you. 5 people were arrested during an anti-war demonstration in London today. Now look at these words. In the first sentence, a dog is a good pet. So word A. In second sentence, an ostrich. We went to the best. So the. These, many, all, the, some letters and 5 people, 5. All these words are called determiners. देखा बच्चों, ये सारे जो शब्द like a, and, the, these, many, some, 5 इस तरह के शब्द को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्धारक। जो संज्ञा को निर्धारित करता है, उन शब्दों को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनर्स इन ग्रामर पोर्शन क्लास 12th जनरल इंग्लिश। आज हम डिटर्मिनर्स निर्धारकों का अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी। डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज। डिटर्मिनर इज a word used before a noun to indicate which things or people we are talking about. The word a, and, the, many, some, any, all, etc. all these words are called determiners. अंग्रेजी ग्रामर व्याकरण में डिटर्मिनर्स जैसे कि a, and, the जो नाउन्स संज्ञा शब्दों का निर्धारण करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन। इन दीज 2 sentences you can see this word is demonstrative, नॉवल को डायरेक्ट कर रहा है। And in the second sentence, there were many people at the station. People के पहले जो word लगा है many, तो many people शब्द का निर्धारण करता है। They limit the meaning of the nouns that follow them. Nouns के पहले प्रयोग किए जाते हैं और उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। इस तरह के शब्दों को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। Now kinds of determiner. First, predeterminer. For example, all of, half of, etc. Number 2, articles, a and the. Definite articles the, and indefinite articles are a and an. Number 3, demonstrative, this, that, these and those. Number 4, possessive, my, our, yours, his, her, its and their. Number 5, ordinals. Ordinals, first, second, next, last, etc. And 6th, cardinals, or you can also name it numerals, 1, 2, 3, 10 and hundreds. Number 7, quantifiers. Quantifiers you have which shows the quantity of a noun: much, many, some, any, no, enough, several, lot of, plenty of, little, few, all, both, another, etc. And number 8, distributive. Distributive determiner: each, every, either and neither. Interrogative: what, which,
whose, etc. So these are the kinds of determiners. ये सब determiners निर्धारक के प्रकार हैं. अब हम इनको एक एक करके इनकी explanation एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों आपका फर्स्ट जो डिटर्मिनर्स है, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, नंबर 1 प्री डिटर्मिनर्स. Predeterminers are the words which occur before a determiner to limit the meaning of a noun. किसी वाक्य में नाउन संज्ञा शब्द को सीमित करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए जो डिटर्मिनर्स लगते हैं उसके पहले हम प्री डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज जॉइन द पार्टी. आप देखिए ऑल द बॉयज, ऑल एंड द इज ऑल्सो डेफिनेट डिटर्मिनर and we have also used determiner all. So all the boys, all word here is predeterminer. यहाँ पर all को हम predeterminer कहेंगे. Both the girls wear pink dress. Now the आपका already determiner है, definite article है, इसके पहले आपने both determiner use किया है, तो यहाँ पर both जो है वो predeterminer कहलाता है. The child drank half of the milk. Now half of the milk. So the के पहले आपने half of use किया है, तो ये भी predeterminers के उदाहरण हैं. Number 2, articles. The article system in English consists of the definite article the and the indefinite article a. And when we refer to a particular people or things or something that has already been mentioned, we use the. The को हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं. जैसे कि सबसे पहले if we refer to a particular people, यदि हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज की बात कर रहे हो तो उसके पहले the का प्रयोग करेंगे. जैसे कि इसके टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल को प्रयोग करने के अलग अलग रूल्स हैं. नंबर 1, एनी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर. बॉल इज अ कॉमन नाउन. बॉल के पहले हम किसी एक विशेष बॉल की बात कर रहे हैं, इसलिए बॉल के पहले आपने यूज किया द. The girls were not in the class. यहाँ पर भी girls और एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गर्ल्स के पहले द और क्लास के पहले भी द का प्रयोग होता है. नंबर 2, to refer a specific person or things. Like I want to meet the principal. Number 2, the tourist crossed the river in a boat. यहाँ पर विशेष तौर पे प्रिंसिपल से मिलने की बात कर रहे हैं. यहाँ पर प्रिंसिपल इज अ स्पेसिफिक पर्सन, इसलिए उनके पहले द का प्रयोग हुआ. जैसे कि टूरिस्ट जो है, दे क्रॉस द रिवर इन अ बोट. सो टूरिस्ट भी हम स्पेसिफिक पर्सन्स में लेंगे, तो उसके पहले हमने द का प्रयोग किया है. नेक्स्ट जो है the definite article, it refers to the things that are only one in the world. पूरे वर्ल्ड में जैसे कि यूनिवर्सल चीजें होती हैं जो एक ही होता है, ऐसी बातों के लिए ऐसे सेंटेंसेस में भी द का प्रयोग होता है. लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूर्व से ही उगता है, ये बात बदल नहीं सकती. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. नेक्स्ट, वर्ड्स सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन. व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, यदि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से रिलेटेड बात हो रही है तो भी हम द का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम इन द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, टीम विल विजिट द स्कूल ऑन सैटरडे. ओके, टीम विल विजिट द स्कूल ऑन सैटरडे. तो इस तरह के उदाहरण. नेक्स्ट,
with time expressions. I met her in the morning. She came here in the evening. जब हम समय का एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन देते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है. नेक्स्ट इज indefinite articles. Indefinite articles a, an. When we talk about people in general or indefinite way, article a is used before the words which begin with consonant sounds, and an is used before the words beginning with vowel sounds. आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है, और एन का प्रयोग वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले. ही इज अ यूरोपियन. दिस इज अ यूनिक आइडिया. आई हैव अ 1 rupee नोट. आप इन उदाहरण में, इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे यूरोपियन या कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ई वॉवेल है, फिर भी इसका उच्चारण या व्यंजन की तरह होता है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए यूनिक. यू, ये भी एक वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट वन इज 1 rupee. 1, ओ भी वॉवेल होता है, पर वा की तरह प्रयोग कर रहे हैं, व्यंजन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है. तो इस तरह के शब्दों के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं. Some words begin with silent letters. Silent letters like honest, our, HONEST, honest. H से शुरू हो रहा है, but H is silent. So here are some example. He is an honest man. I met him an hour ago. So hour, honest, इन शब्दों के पहले an का प्रयोग होता है. नेक्स्ट डिटर्मिनर इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज. These determiners are used to talk about person or things that have already been mentioned. This and these are used to the things that are near and can be seen. This और these जो है, इनका प्रयोग जो करीब होता है, पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पास हैं और जिनको देखा जा सकता है, उन ऑब्जेक्ट्स के पहले, उन नाउन्स के पहले दिस और दीज का प्रयोग होता है. दैट एंड दोज दैट आर एट अ डिस्टेंस बट कैन बी सीन, जो थोड़े से डिस्टेंस में हो, थोड़ा सा दूर हो और पर वो दिखाई दे रहे हों, ऐसे नाउन्स के पहले हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं. बच्चों, यहाँ पर दिस और दैट सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज करते हैं. दीज एंड दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के लिए होता है. सी सम एग्जाम्पल्स. आई लाइक दिस स्कूल. Those boys are very intelligent. She bought these books. आपने यहाँ पर देखा this, those and these का प्रयोग demonstrative determiners के रूप में हुआ है. Now next one is possessive. Possessive determiners to show possessions. So यहाँ पर possessive determiners के कुछ उदाहरण हैं, like my, our, her, its, their. So these are possessive determiners. For example, he is my father. Their house is very big. Your daughter is beautiful. So see the words my, their and your. These are possessive determiners. Next one is ordinals. First, second, next, last, etc. These are ordinal determiners. These determiners show the position of something has in a series. किसी सीरीज में आपकी क्या पोजीशन है,
उस बात को ये डिटर्मिनर्स दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द फर्स्ट बॉय हु जॉइन दिस स्कूल। नेक्स्ट, he is the last man to help you. So first, last, these are ordinals. Now next is cardinals. Cardinals determiner, kinds of determiner का next जो type है that is cardinals. 1, 2, 3, 100 etc. are cardinal determiners. For example, there were only 10 boys in the class. इस सेंटेंस में 10 वर्ड इज डिटर्मिनर, ये बॉयज की संख्या को निर्धारित करता है। शी लिव्ड फॉर 90 years, 90 years, 90 भी संख्या बता रहा है। he has 3 sons, he has 3 sons, so 3 वर्ड जो है वो sons की संख्या को निर्धारित करता है। Next determiner is quantifiers. Quantifiers determiner like much, many, some, any, little, few, all, both, another. These are some of the quantifier determiners. बच्चों यहाँ पर कुछ examples जैसे कि हम much और many का प्रयोग करते समय हम nouns को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आधार पर कुछ डिटर्मिनर्स का प्रयोग होता है। जैसे कि मच और मैनी, वी यूज मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता और काउंटेबल मीन्स जो गिने जा सकते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले मच का प्रयोग आता है और काउंटेबल नाउन्स के पहले मैनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देयर इज मच वाटर इन द टैंक, वाटर इज अनकाउंटेबल, सो वी हैव यूज्ड मच, देयर इज मच वाटर इन द टैंक। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो स्टूडेंट्स कैन बी काउंटेबल। छात्र की संख्या को गिना जा सकता है, इसलिए इस तरह के शब्दों के पहले मैनी यूज करते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते इस तरह के संज्ञा शब्दों के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। वैसे ही लिटिल और फ्यू में भी डिफरेंस है। लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं और फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। There were few audience in the auditorium. Few audience in the auditorium, मतलब ऑडियंस जो है वो गिन सकते हैं, इसलिए हम few का प्रयोग कर रहे हैं। There is little milk in the jug. जग में बहुत ही कम मिल्क है, तो लिटिल वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए हमने लिटिल शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह से सम, एनी, ऑल, बोथ, दो लोगों के लिए बोथ का प्रयोग। तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स ये संख्या को निर्धारित करते हैं, संज्ञा शब्द की संख्या को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर etc. These are distributive determiners. For example, each of the students will be given certificates. She goes to temple every day. यहाँ पर आपने देखा कि each का प्रयोग डेफिनेट नंबर के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग इनडेफिनेट नंबर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडीइंग, विच कलर डू यू लाइक, whose pen is this? So what, which, whose, these are interrogative determiners. तो बच्चों आज आपने अध्ययन किया कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 है प्री डिटर्मिनर्स, जिनमें हमने लिया था ऑल, ऑल ऑफ, हाफ,
half of, etc. Then you have second number article a and the. Number 3 demonstrative this, that, these, those, etc. Possessive my, our, your, his, her, its and their. Ordinals first, second, next, last, etc. Then you have cardinals or numerals 1, 2, 3, 10, thousands, numbers. Then you have quantifiers some, any, much, many, little, few, all, both, another. These are quantifiers. Then you have distributive each, every, either, neither, etc. And last one is interrogative what, which, whose, etc. I hope all of you understood this grammar portion nicely. Stay safe, stay healthy. Jai Hind bachcho.